درود شریف پڑھ لیجیے، آج نئی کتاب شروع ہو رہی ہے اس لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج صرف کا پہلا سبق ہے۔ اس سے پہلے 3 کتابیں مکمل ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں نے مفتاح العربیہ پڑھایا، اس کے بعد آسان نحو، پھر اس کے بعد منہاج العربیہ۔ اب ہے آسان صرف۔ آسان صرف جو ہے آسان نحو کے مقابلے میں ذرا مشکل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک منٹ ڈرائنگ دیکھ لیتا ہوں۔ پہلا سبق علم صرف۔ سب سے پہلے علم صرف کی تعریف یعنی ڈیفینیشن، اور اس کے بعد اس کا فائدہ یعنی اس کے سیکھنے کا فائدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے علم صرف کا جو ڈیفینیشن ہے یعنی تعریف ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ علم صرف وہ علم ہے جس سے لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔ یہ ہے علم صرف کی تعریف، ڈیفینیشن۔ علم صرف وہ علم ہے، وہ علم یا وہ فن، ٹھیک ہے، وہ علم ہے جس سے لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ کتنی باتیں آ گئی؟ لفظوں کی گردان جس سے پتہ چلے، صیغوں کی پہچان، اور ایک صیغہ سے یعنی ایک ورب سے دوسرے کئی ورب بنانے کا طریقہ معلوم ہو، اس فن کو، اس علم کو ہم علم صرف کہیں گے، ٹھیک ہے۔ علم صرف وہ علم ہے جسے لفظوں کی گردان، لفظوں یہ لفظ کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ گردان کہتے ہیں جس طرح سے پہاڑا پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ایک ترتیب ہوتی ہے، جیسے پڑھ کر بتاتا ہوں۔ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، آخر تک، ٹھیک ہے۔ 14 صیغے ہیں۔ ایسے ہی ضمیروں کی گردان پہلے سے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، انتا، انتما، انتم، یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ گردان ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جا کر کے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، یہ سب گردانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لفظوں کی گردان کس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ علم صرف کے ذریعے سے۔ اور صیغوں کی پہچان، صیغوں کی پہچان سے پہلے صیغوں کو پہچان لیتے ہیں، یعنی صیغہ کہتے کس کو؟ صیغہ کی جمع صیغو ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے صیغہ کو سمجھ لیتے ہیں کہ صیغہ کسے کہتے ہیں۔ صیغہ کہتے ہیں حروف یعنی لیٹرز اور حرکات و سکنات۔ حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، اور سکنات کہتے ہیں زبر زیر پیش کے نہ ہونے کو، ٹھیک ہے۔ تو میں صیغہ کو سمجھا رہا ہوں، اس کو سمجھا رہا ہوں۔ صیغہ کسے کہتے ہیں؟ صیغہ کہتے ہیں حروف یعنی لیٹرز کے ایسے ترتیب کو، ایسے ڈیزائنڈ کو، ٹھیک ہے، جس میں حروف ہو اور حرکات ہو، حرکات یعنی زبر زیر پیش ہو، اور سکنات ہو، ٹھیک ہے۔ ایک خاص ترتیب سے، ایک خاص ترتیب سے حروف ہو اور حرکات و سکنات ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مجموعہ کو ہم کیا کہیں گے؟ صیغہ کہیں گے۔ جیسے میں اسے اردو میں سمجھا دیتا ہوں آسانی سے۔ یہ جو علم لفظ دیکھ رہے ہیں، یہ علم، اس کو سمجھیے۔ علم میں کتنے لیٹر ہیں؟ عین، لام، میم، ٹھیک ہے، عین، لام، میم۔ علم ایک صیغہ ہے، ایک لفظ ہے، ایک صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اسپیسیفک لفظ ہے علم، جس کا میننگ ہوتا ہے جاننا۔ تو علم جو جس کے معنی جاننا ہوتا ہے، یہ اسپیسیفک لفظ ہے۔ اس میں 3 لیٹر ہے، تینوں کی ایک خاص ترتیب ہے۔ پہلے پہ زیر ہے، ٹھیک ہے، عین زیر ای، ٹھیک ہے، اور دوسرے پہ جزم ہے، عین لام زیر ال۔ جب پہلے پہ زیر، پہلا پہ حرکت ہو اور دوسرے پہ جزم ہو تو پہلے کو دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں،
ठीक है। और दो लगातार पे साकिन हो तो आखिर वालों को माकूफ कहते हैं, माकूफ। ठीक है। तो पहले पे जेर है इल्म में, और दूसरे यानी लाम पे साकिन है और मीम पे साकिन है। ठीक है। जब ये कंडीशन होगी कि पहले लेटर पे जेर होगा और दूसरे लेटर पे जज़म होगा और तीसरे लेटर पे भी जज़म होगा, तभी आपको इल्म का सेगा मिलेगा। स्पेसिफिक जो सेगा है वो इल्म आपको तभी हासिल होगा जब ये अपने अपने स्पेसिफिक पोजीशन पे रहेंगे तब। ठीक है, खास जगह में रहेंगे तब। ये हुआ सेगा। तो सेगों की पहचान भी हम इल्म सर्फ के जरिए से करते हैं। उसके बाद क्या है, और एक सेगा हमें पता है, उस सेगा के जरिए से हम दूसरे कई सेगों को बनाते हैं। दूसरे कई सेगों को बनाने का तरीका भी हमें इल्म सर्फ बताता है। फिर से देखिए डेफिनेशन। इल्म सर्फ वो इल्म है जिससे लफ्जों की गर्दान, ठीक है, सेगों की पहचान और एक सेगा से दूसरा सेगा बनाने का तरीका मालूम हो, तो उसे हम उस इल्म को हम इल्म सर्फ का नाम देंगे, इल्म सर्फ। ठीक है, मॉर्फोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। फायदा क्या है इसके पढ़ने का, इस इल्म का इस इल्म के पढ़ने का फायदा क्या है? इस इल्म का फायदा ये है कि इससे अल्फाज को सही पढ़ना आ जाता है। इस इल्म का फायदा ये है कि इससे अल्फाज को सही पढ़ना आ जाता है। मैंने पहले बताया था कि आसान नहव जो है वो लफ्ज के आखिर को ट्रीट करता है, लफ्ज के आखिर को देखता है। ठीक है, लफ्ज के आखिर में कौन सी हरकत आ रही है, कौन सी आएगी, जबर आएगा, जेर आएगा, जबर आएगा या फिर जेर आएगी या फिर पेश आएगा, उसको इल्म नहव देखता है। सर्फ को उससे लेना देना नहीं है कि लफ्ज के आखिर में क्या आए। ठीक है, लेकिन शुरू और बीच को का जो फॉर्मेशन होता है, लफ्ज के शुरू और बीच का जो मिडिल पोजीशन जो है उसका जो फॉर्मेशन होता है, जो बनता है, उसको जो हम देखते हैं वो इल्म सर्फ के जरिए से देखते हैं। ठीक है, तो फायदा इल्म सर्फ का ये है, इससे अल्फाज को सही पढ़ना, सही यानी दुरुस्त पढ़ना आ जाता है। अब यहाँ दिए हुए हैं चंद ज़रूरी इस्तिलाहात। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट इस्तिलाहात, इस्तिलाह की जमा है, इस्तिलाह के माने होंगे टर्म। चंद ज़रूरी इस्तिलाहात, सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, सम इम्पोर्टेंट टर्म, शॉर्ट में बोलेंगे तो टर्म कहेंगे। चंद ज़रूरी इस्तिलाहात यानी सम इम्पोर्टेंट टर्म, सर्फ के कुछ अहम इस्तिलाह। इस्तिलाह कहते हैं खास नाम को। ठीक है, जम्मा, जम्मा पेश, फतहा जबर और कसरा जेर को कहते हैं। पहले ये क्लियर हो चुका है, जम्मा पेश का नाम है, जम्मा जो है पेश का नाम है। ठीक है, और फतहा जबर का नाम है और कसरा जेर का नाम है। याद रखेंगे, जम्मा पेश को, फतहा जबर को और कसरा जेर को कहते हैं। ठीक है, ये एक टर्म हो गया। अब एक दूसरे दूसरे अंदाज से एक टर्म है, वो है मजमूम। ये जम्मा से बना मजमूम, ऊपर जो है इसके जस्ट ऊपर जम्मा से बना मजमूम। मजमूम के माना होंगे पेश वाला हर्फ, यानी जिस हर्फ पे पेश होगा उस हर्फ को हम क्या कहेंगे, सिंपली, सिंपल में क्या कहेंगे, मजमूम, या फिर हरफ मजमूम, यानी मजमूम लेटर, यानी जिस पे पेश हो उसको हम मजमूम कहते हैं। ठीक है, जम्मा से मजमूम बना। और मफ्तूह, जबर वाला हर्फ, जिस हर्फ पर यानी जिस लेटर पे जबर होगा उसको मफ्तूह कहेंगे, मफ्तूह कहेंगे। ठीक है, और मकसूर जेर वाला हर्फ है, मकसूर जेर वाला हर्फ है, जिस हर्फ पर जेर होगा उस हर्फ को हर्फ मकसूर कहेंगे। कंप्लीट अगर कहेंगे तो हर्फ मकसूर, और अगर सिंपल में कहेंगे तो सिर्फ क्या कहेंगे, मकसूर है। ये लफ्ज मकसूर है। ठीक है, देखें, जम्मा पेश को कहते हैं, फतहा जबर को कहते हैं और कसरा जेर को कहते हैं। याद रहेगा इंशाल्लाह। मजमूम, मजमूम पेश वाला हर्फ, पेश वाले हर्फ को मजमूम कहते हैं। मफ्तूह जबर वाला हर्फ, जबर वाले हर्फ को मफ्तूह कहते हैं। मकसूर जेर वाला हर्फ है, यानी
زیر والے حرف کو مکسور کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے تنوین. تنوین کس چیز کا نام ہے؟ تنوین جو ہے دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں. دیکھیے سمبل میں دو زبر کا سمبل اس طرح سے ہوگا، لکیر کے اوپر ہوگا. لکیر کہتے ہیں سیدھی لائن کو. لکیر کے اوپر دو زبر دو رہے گا تو یہ کہلائے گا دو زبر. نیچے ہوگا تو دو زیر، اور پیش جو ہوگا وہ بھی اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں. دو زبر، دو زیر، دو پیش کا نام تنوین ہے. ٹھیک ہے. اس پہ حاشیہ بھی لگا ہوا ہے تنوین پہ. وہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ تو بچوں کے لیے ایک تعبیر ہے، سمجھانے کا ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے تنوین کے بارے میں. ٹھیک ہے. ورنہ جو تنوین ہے، تنوین نون ساکن کا نام ہے. ٹھیک ہے. نون ساکن کا نام ہے. تنوین نون ساکن کا نام ہے، یعنی جس نون پہ جزم ہو اس نون کو کیا کہیں گے؟ تنوین کہیں گے. نون ساکن کا نام تنوین ہے اصل میں. ٹھیک ہے. اس کی آواز، اس کی آواز دو حرکتیں پیدا کرتی ہے. اس کی آواز دو حرکتوں سے پیدا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تنوین کی آواز دو حرکتوں سے پیدا ہوتی ہے. دیکھیے دن، دن میں کتنے حرف آ رہے ہیں؟ دال اور نون. بن، بن میں کتنے؟ با اور نون. لن، کوئی بھی تنوین آپ اٹھا لیجئے کسی بھی 29 لیٹر میں سے، الف سے یا تک میں، تنوین کی آواز دو حرف مل کر کے ہی ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی زیدن جو لکھا ہوا ہے تنوین کے ساتھ دو پیش کے ساتھ، جو زیدن لکھا ہوا ہے اس کی جو اصل تھی وہ کس طرح سے تھی؟ زا یا زبر زئی، دال نون زیر، دال نون پیش دن، زیدن. ٹھیک ہے. یعنی نون ساکن ہی کا نام تنوین ہے. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن بھی دو آواز پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور تنوین بھی دو آواز پیدا کرتی ہے. تو اس کو اس طرح سے سمجھیں، نورانی قاعدہ میں بلکہ دیا ہوا ہے ایک دم بہت آسانی اچھے طریقے سے. بادو زبر بن از اکول ٹو بانون زبر بن. ٹھیک ہے. نورانی قاعدہ کا 8واں لیسن ہے شاید. بادو زبر بن از اکول ٹو بانون زبر بن. ٹھیک ہے. یعنی با کے اوپر دو زبر لگائیں یا پھر با کے ساتھ نون لگائیں، دونوں کا سیم تلفظ ہوگا، یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے حرکت، حرکت بھی سمجھ چکے ہیں. حرکت زبر کو، زیر کو اور پیش کو، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. اور چونکہ یہ تین ہے، زبر ایک ہو گیا، زیر دوسرا ہو گیا اور تیسرا پیش ہو گیا، تو ان تینوں کے مجموعے کو اکٹھے کیا کہتے ہیں؟ حرکات ثلاثہ. کہیں اگر لکھا دیکھیں تو حرکات ثلاثہ کے معنی زبر زیر پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گرامر کی کتابوں میں مل سکتا ہے. حرکت کہتے ہیں زبر کو، زیر کو، پیش کو. ٹھیک ہے. اور متحرک کہتے ہیں اس حرف کو. متحرک کسے کہتے ہیں؟ متحرک وہ حرف ہے، یعنی وہ لیٹر ہے جس پر کوئی حرکت ہو، چاہے زبر ہو، حرکت میں سے چاہے زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش. متحرک وہ حرف ہے جس پر کوئی حرکت ہو، اسے متحرک کہیں گے. ٹھیک ہے. عام بول چال میں، اردو بول چال میں جو آدمی تھوڑا کیا کہتے ہیں حرکت میں رہتا ہے اسے ایک متحرک انسان کہا جاتا ہے، اور جو سست رہتا ہے اسے غیر متحرک کہا جاتا ہے اسی وجہ سے. ٹھیک ہے. کیونکہ حرکت کا کام ہی ہے موو کرنا. جب تک کسی حرف کے ساتھ حرکت نہیں لگے گا ہم اس کا تلفظ نہیں کر سکتے کسی بھی حرف کے بارے میں. جب تک اس کے ساتھ حرکت یعنی زبر زیر پیش نہیں لگے گا تب تک ہم اس کا اچارن یعنی تلفظ، پروننسیشن نہیں کر سکتے. امپاسبل ہے. ٹھیک ہے. ہم کسی بھی حرف کا تلفظ ادا کرنے کے لیے ہم محتاج ہیں زبر زیر پیش کا. ٹھیک ہے. زبر زیر پیش لگ جاتا ہے تو زبر زیر پیش یہ حرکت ہے، اس کا نام ہے حرکت. ٹھیک ہے. موومنٹ. اور یہ جس حرف کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کو متحرک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سکون اور جزم. سکون اور جزم ایک ہی چیز کا دو نام ہے. ٹھیک ہے. سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ جازم نہیں دیکھیں گے کہیں پہ، لیکن سکون سے ساکن ہوتا ہے. جو حرف
पे सुकून होता है यानी जबर जेर पेश नहीं होता है उसको साकिन कहते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं आपने ये नहीं सुना होगा कि जिस हर्फ पे जज़म हो उसको जाजिम कहते हैं, ठीक है। आम मतलब आसान ग्रामर में नहीं मिलेगा, मुश्किल ग्रामर में हो सकता है जाज़मा या जाजिम कहा जाता हो, लेकिन आम तौर से जाजिम का इस्तेमाल कम है, सुकून से साकिन का इस्तेमाल है। इसीलिए यहाँ पे इस किताब में साकिन को इन्होंने दे दिया, मेंशन कर दिया, जज़म से जाजिम को छोड़ दिया, ठीक है। सुकून और जज़म दोनों एक ही चीज का नाम था। सुकून और जज़म हरकत के ना होने को कहते हैं, यानी जबर जेर पेश ना हो तो उसको क्या कहेंगे, सुकून है या फिर जज़म है, ठीक है। साकिन, सुकून से बना साकिन, ठीक है, और जज़म से बनेगा जाजिम, लेकिन जज़म से जाजिम को मेंशन नहीं किया है इन्होंने, मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने। सुकून से बना साकिन, साकिन वो हर्फ है, याद रखेंगे, वो हर्फ है, वो लेटर है जिस पर कोई हरकत ना हो। साकिन वो हर्फ है जिस पर कोई हरकत ना हो। जैसे इसी साकिन लफ्ज में गौर कीजिए, इसी साकिन में जो नून है उस पर कोई हरकत नहीं है, तो साकिन का नून साकिन है, साकिन का नून साकिन है, ठीक है। साकिन का नून मुतहर्रिक नहीं है, साकिन का सीन मुतहर्रिक है, साकिन का काफ मुतहर्रिक है, लेकिन साकिन का जो नून है वो साकिन है क्योंकि उस पे जज़म है। जज़म यानी सुकून है, हरकत नहीं है, जबर जेर पेश नहीं है। जबर जेर पेश के न होने को साकिन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद तशदीद, तशदीद किसे कहते हैं, एक जिन्स के, एक जिन्स मतलब एक जैसे, एक जिन्स के दो हरफों यानी दो लेटर, एक जिन्स के दो हरफों को एक लिखना और दो पढ़ना। एक जिन्स के दो हरफों को एक लिखना, लिखना एक और पढ़ना दो, ठीक है। जैसे रब्बुन की बा, यहाँ देखें रब्बुन तलफ्फुज कर रहे हैं तो कितना बा आ रहा है, रब्बुन, दो बा इस्तेमाल हो रहा है इसमें, ठीक है। रब्बुन, दो बार बा की आवाज निकल रही है, ठीक है। तो दो दो बा जो है वो दोनों एक ही जिन्स का है, एक ही जिन्स का, दोनों सेम लेटर है, उसी को कह रहे एक जिन्स, दोनों सेम लेटर है, ठीक है। और दो हर्फ है, दो हर्फों को इन्होंने एक लिखा, ठीक है, और दो पढ़ा, रब बुन, रब बुन, ठीक है। तो एक जिन्स को, एक जिन्स यानी एक जैसे हर्फ को, एक जैसे दो हर्फों को एक लिखना, लिखने में एक और पढ़ने में दो होना, ये तशदीद कहलाता है, ठीक है। जैसे रब्बुन की बा, रब्बुन की बा क्या है, रब्बुन की बा तशदीद है, रब्बुन की बा तशदीद है। और हरफ मुशद्दद यानी बा जो है हरफ मुशद्दद नहीं, ये तो हो गया, रब्बुन की बा तशदीद है, ठीक है। क्यों तशदीद है, क्यों शद्दा है, शद्दा भी बोलते हैं, शद्दा भी बोलते हैं, तशदीद भी बोलते हैं। रब्बुन की बा इसलिए तशदीद कहलाएगी क्योंकि ये एक ही जैसा दो हर्फ को एक लिख कर दो पढ़ा जा रहा है, इसलिए इसको तशदीद कहा जा रहा है, ठीक है। रब्बुन की बा तशदीद है यानी मुशद्ददा है। और हरफ मुशद्दद यानी जो लेटर, जिस लेटर पे मुशद्दद, जो लेटर मुशद्दद है यानी जिस पे क्या कहते हैं तशदीद है, तशदीद का सिंबल जो है डब्लू जैसा, ठीक है। और हरफ मुशद्दद की अलामत यानी सिंबल, ये जो है अलामत डब्लू जैसा है जो, इसको भी तशदीद कहते हैं, ठीक है। तशदीद एक तो हो गया, देखिए इस सिंबल का नाम जो डब्लू जैसा बना हुआ है, और एक उस प्रोसेस का नाम है कि एक जिन्स के दो हर्फ को, एक जिन्स के दो हर्फों को एक लिखना और दो पढ़ना, इस प्रोसेस का नाम तशदीद है, ठीक है। और एक हो गया हर्फ मुशद्दद पे जो अलामत होती है, अलामत यानी सिंबल जो होता है डब्लू की तरह, क्या कहते हैं तशदीद की जो सिंबल है वो डब्लू की तरह होता है, वो भी तशदीद है। ये नाम है और एक प्रोसेस का नाम तशदीद है, हो गया क्लियर। उसके बाद है मुशद्दद, लास्ट लाइन, मुशद्दद कहते हैं तशदीद वाला हर्फ, यानी जिस हर्फ पे तशदीद है उस हर्फ को मुशद्दद कहेंगे। ऐसे ही जैसे जिस हर्फ पे हरकत होता है उसको मुतहर्रिक कहते हैं, जिस हर्फ पे जम्मा होता है उसको मजमूम कहते हैं,
जिस हर्फ पे फतहा होता है उसको मफ्तूह कहते हैं, जिस हर्फ पे कसरा यानी जेर होता है उसको मकसूर कहते हैं। वैसे ही जिस हर्फ के ऊपर तशदीद होगा उस हर्फ को क्या कहेंगे? मुशद्दद। मुशद्दद के माना होंगे। मुशद्दद का ये जो शुरू में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं ड्राइंग इस्तेमाल नहीं कर सकता, स्क्रीन गायब हो जाता है लास्ट लाइन में। इस किताब के साथ भी यही प्रॉब्लम है। खैर, तो ये जो मुशद्दद है, जो बोल्ड लिखा हुआ थोड़ा, इसका जब हम तर्जमा करेंगे, इसका जैसे हाँ, इसका जो तर्जमा करेंगे तो इसका मतलब होगा कि तशदीद दिया हुआ। ठीक है, तशदीद दिया हुआ। ठीक है, यानी तशदीद वाला हर्फ, जिस हर्फ के ऊपर तशदीद होगा उसको मुशद्दद कहेंगे। तशदीद वाला हर्फ जैसे रब्बुन की बा, रब्बुन की बा क्या है? बा मुशद्दद है, यानी उसके ऊपर तशदीद है। ऊपर से देख लेते हैं एक बार। देखिए, इल्म सर्फ वो इल्म है जिससे लफ्जों की गर्दान, ठीक है, सेगों की पहचान, कौन कौन सा सेगा है, हम सेगों की पहचान किस तरह से करेंगे, और इल्म सर्फ के जरिए से पता चलता है। और एक सेगा जो आपको हासिल है, कोई भी एक सेगा, उसमें कुछ चेंजिंग करके, कुछ माइनर या मेजर चेंजिंग करके हम दूसरे कई सेगा बना सकते हैं। ठीक है, तो इल्म सर्फ वो इल्म है जिससे लफ्जों की गर्दान पढ़ी जाती है, या फिर सेगों की पहचान होती है, या फिर एक सेगा से दूसरा सेगा बनाने का तरीका मालूम होता है। तो उस इल्म का नाम इल्म सर्फ है। ये इल्म सर्फ की डेफिनेशन हुई। फायदा ये है, फायदा इस इल्म का ये है कि इससे अल्फाज को सही पढ़ना आ जाता है। जब तक हमें लफ्जों की गर्दान का कोई अता पता नहीं होगा, सेगों की पहचान नहीं होगी, और एक सेगा से दूसरा सेगा बनाने का तरीका नहीं मालूम होगा, तो हम अल्फाज को दुरुस्त पढ़ ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल है। बहुत अटक अटक कर पढ़ेंगे, या फिर पढ़ना बहुत ज़्यादा दुश्वार होगा। ठीक है, उसके बाद चंद ज़रूरी इस्तिलाहात। ठीक है, इस्तिलाहात है इस्तिलाह, इस्तिलाह, इस्तिलाह के माने टर्म। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, सम इम्पोर्टेंट टर्म। जम्मा कहते हैं पेश को, पेश का दूसरा नाम जम्मा। फतह कहते हैं जबर को, जबर का दूसरा नाम फतहा। कसरा कहते हैं जेर को, जेर का दूसरा नाम कसरा। ठीक है, उसके बाद है मजमूम। मजमूम यानी जिस हर्फ पे पेश होगा उसको, उस हर्फ को मजमूम कहेंगे, उस हर्फ को मजमूम कहेंगे। ठीक है, और जिस हर्फ पे जबर होगा उसको मफ्तूह कहेंगे, क्योंकि जबर को फतहा कहते हैं, तो फतहा से मफ्तूह हुआ। और जिस हर्फ पर जेर होगा उसको मकसूर कहेंगे, क्योंकि जेर को कसरा कहते हैं, और कसरा जिस पे होगा उसको मकसूर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है तनवीन। तनवीन कहते हैं दो जबर को, या फिर दो जेर को, या फिर दो पेश को। दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। तीसरा या चौथा कायदा है, नूरानी कायदा का शायद है, तख्ती में लिखा हुआ बाज़ाब्ता। हरकत, हरकत जबर जेर और पेश को कहते हैं। ये बहुत बेसिक चीज है, ऐसा नहीं है, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। ठीक है, हरकत जबर जेर और पेश को कहते हैं। उसके बाद है मुतहर्रिक। वो हर्फ है, मुतहर्रिक वो हर्फ है जिस पर कोई हरकत हो। ठीक है, जैसे बा के ऊपर जबर है तो बा को हम मुतहर्रिक कहेंगे। बा के ऊपर जबर होने की वजह से बा को मुतहर्रिक कहेंगे। अगर बा के ऊपर कोई जबर जेर पेश नहीं है तो उसको हम मुतहर्रिक नहीं कह सकते, उसको साकिन फिर कहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही बा के ऊपर या जीम के ऊपर किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो या जेर हो या पेश हो तो उस जबर जेर पेश होने की वजह से उसको मुतहर्रिक कहेंगे। अगर नहीं है तो नहीं होने की वजह से उसको साकिन या सुकून या जज्म वाला कहेंगे। ठीक है, सुकून और जज्म हरकत ना होने को कहते हैं, हरकत के ना होने को सुकून और जज्म कहते हैं। साकिन बना सुकून से। साकिन वो हर्फ है, वो लेटर है, वो हर्फ है जिस पर कोई हरकत ना हो, जिस पर कोई हरकत ना हो। जिस हर्फ पे, जैसे बा लिखा हुआ है लेकिन हाँ, अच्छा, नूरानी कायदा की जो तख्ती में जो सबसे पहली तख्ती है जिसमें अलिफ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा, अलिफ से या तक लिखा हुआ है, उसमें तमाम के तमाम हरूफ क्या है? साकिन है, याद रखेंगे। ठीक है, अगरचे उस पे जज्म का सिंबल नहीं है, फिर भी वो सुकून है, साकिन में। जब तक उसके साथ जबर जेर पेश ना लगे वो साकिन है।
ٹھیک ہے، ساکن وہ حرف ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو. تشدید کہتے ہیں ایک جنس کے مطلب ایک جیسے دو حرفوں کو، دو لیٹر کو ایک لکھ کر دو پڑھنا. جیسے ربن، ربن کے معنی پالنہار. ربن کی با لکھا انہوں نے ایک ہے، ایک با لکھا ہے لیکن پڑھ رہے ہیں دو. آپ خود پڑھ کر دیکھ لیں. رب بن، رب ایک را با سے مل رہا ہے اور دوسرا جو را ہے اس پہ تنوین ہے یعنی دو پیش ہے. ربن کی با. ٹھیک ہے. اور حرف مشدد، حرف مشدد یعنی جس حرف کے اوپر تشدید ہو اس حرف کو حرف مشدد کہیں گے. حرف مشدد کی جو علامت ہوتی ہے نا یعنی ڈبلو کی طرح، اسے بھی تشدید کہتے ہیں. اس کے بعد مشدد، مشدد کہتے ہیں تشدید والا حرف کو، تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں. جیسے ربن میں لفظ ربن میں ربن کی جو با ہے یہ بائے مشددہ ہے، بائے مشدد ہے، با مشدد ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا لیسن کلیئر ہو گیا. کوئی سوال ہے تو پوچھیے یہاں تک میں اس لیسن میں. جی بولیے. یہ ساکن اور ججم، ہوں ساکن اور ججم حرکت ہوں نہ ہونے کو کہتے ہیں. ہاں ساکن یا اور ججم ہے نا. اور ہوں جو سکون اور ججم وہ کہہ دیا، اور ہوں ساکن اس کو وہ حرف ہے جس پر ہوں کوئی حرکت نہ ہو. تو ہوں حرکت تو اوپر والے پہ بھی نہیں رہتی اور نیچے میں بھی، تو دونوں کا الگ الگ نام ہو رہا سکون اور ساکن، ہوں جبکہ ٹھیک ہے. حرکت دونوں پہ نہیں ہے. ہوں حرکت دیکھیے دونوں پہ نہیں ہے. صرف تعبیر جو بولتے ہیں نا، ایک ہی بات کو دو انداز سے کہنا، اچھا وہی اچھا. بات ہے. دیکھیے سکون جیسے با لکھا ہوا صرف اس پہ زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ حرف سکون میں ہے، یہ حرف سکون میں ہے. ٹھیک ہے، اس پر جزم ہے. ٹھیک ہے، تو اس جو حرف سکون میں ہے، جو سکون ہے یا پھر جس پہ جزم ہے اس کا کچھ نام بھی تو ہوگا. ٹھیک ہے، سکون ہونے کی وجہ سے یعنی اس پر حرکت نہیں ہے تو اس کو حرکت کے نہ ہونے کو سکون کہہ رہے ہیں. حرکت کے ہونے کو متحرک کہیں گے، حرکت کے ہونے کو حرکت کہیں. دیکھیے زبر زیر پیش آ گیا تو کہیں گے اس پہ حرکت ہے. ٹھیک ہے، حرکت ہے. اور حرکت نہیں ہے تو اس کو کہیں گے سکون ہے، بہت سکون ہے. ٹھیک ہے، سکون میں ہے. ٹھیک ہے، تو جو سکون میں ہوگا اس حرف کا نام ہے ساکن، وہ حرف جس پر کوئی حرکت نہ ہو. دونوں بات میں سمجھ میں آئی. ایک ہے حرکت نہ ہونے کو، جیسے زبر زیر پیش نہیں ہے، زبر زیر پیش کے نہ ہونے کو سکون اور جزم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور سکون جس حرف کے اوپر ہے اس حرف کو ہم کیا کہیں گے؟ اس حرف کو ساکن کہیں گے. ساکن یعنی سکون. دیکھیے ساکن کا ترجمہ میں کر رہا ہوں. ساکن کے معنی سکون والا. لیجئے سکون والا یعنی سکون والا حرف فاعل کے وزن پہ ہے نا. اس طرح سے کامل، کامل کے معنی مکمل کرنے والا. ٹھیک ہے، پھر حامد، حامد کے معنی تعریف کرنے والا. اسی سیم وزن پہ ساکینن ہے کہ نہیں ہے؟ تو ساکن کے معنی ساکن والا، سکون والا. سکون والے حرف کو ساکن کہیں گے اور سکون کہیں گے حرکت کے نہ ہونے کو. دونوں دو چیز ہے، تھوڑی سی فرق ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی ڈفرینس ہے تھوڑا تھوڑا. ہے نا. ٹھیک ہے، آگے سمجھ. ہو گیا کلیئر؟ اور ہو گیا کوئی کلیئر ہو گیا. کچھ بھی کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، آگے. دیکھیے دوسرا سبق بھی بہت آسان ہے. دوسرا سبق جو ہے زمانہ. ٹھیک ہے، ورب کے ہمیں فارمز وغیرہ پڑھنے ہیں، اس میں ورب کا فارمیشن وغیرہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ٹینس بھی ہے. زمانہ یعنی ٹینس. ٹھیک ہے، زمانہ یعنی ٹینس. زمانہ وقت کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ وقت کو کہتے ہیں، ٹائم. اور زمانے تین ہیں. بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے. زمانہ وقت کو کہتے ہیں اور زمانے تین ہیں. تین ہی زمانہ ہے. ٹھیک ہے، چوتھا کوئی زمانہ نہیں اصل. ٹھیک ہے، باقی ضمنی طور پہ جو ہوتا ہے ٹینس جب آپ پڑھیے گا، ٹینس میں جو مین ٹینس ہوتا ہے وہ تین ہی ہوتا ہے، پاسٹ اور پریزنٹ اینڈ فیوچر. باقی جو اس کے اندر جو آتا ہے
वो ज़िमनी कहलाता है, ज़िमनन, कि एक के पार्ट, के पास्ट में कितने हैं, फ्यूचर में कितने हैं और प्रेजेंट में कितने हैं। लेकिन असल में जो होता है वो 3 ही होता है ज़माना, या तो गुज़रा हुआ ज़माना, या तो मौजूदा ज़माना, या तो फिर आइंदा ज़माना, ठीक है? अब देखिए माज़ी, माज़ी गुज़रा हुआ ज़माना, गुज़रे हुए ज़माने को माज़ी कहते हैं। माज़ी के माना गुज़रा हुआ ज़माना, ठीक है? मज़ा यमज़ी के माना होता है गुज़रना। माज़ी गुज़रा हुआ ज़माना, गुज़रने वाला ज़माना, जो गुज़र चुका यानी पास्ट, माज़ी यानी पास्ट, ठीक है? एकदम सिंपल में भी याद रखिए। हाल, हाल तो जानते हैं, मौजूदा ज़माना को कहते हैं। हाल मौजूदा ज़माना यानी प्रेज़ेंट। और मुस्तक़बिल, मुस्तक़बिल को बताने से पहले इस पे जो हाशिया है उसको दिखा देते हैं। नीचे देख लीजिए। मुस्तक़बिल में बा पर ज़बर और ज़ेर दोनों दुरुस्त है, दोनों करेक्ट है। यानी मुस्तक़बिल भी सही है, सही लफ्ज़ है, और मुस्तक़बल भी सही है। मुस्तक़बल, कोई अगर कहते हैं मुस्तक़बल तो वो गलत नहीं है, डिक्शनरी के एतबार से वो भी सही है। ये और बात है कि आगे इन्होंने लिखा है मगर मशहूर ज़ेर वाला है, यानी मुस्तक़बिल लफ्ज़ जो है ज़ेर के साथ जो है वो ज़्यादा फेमस है। ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया है, ठीक है? तो देखिए मुस्तक़बिल या मुस्तक़बल, ज़्यादा जो फेमस है बोलचाल में वो मुस्तक़बिल है, बा के ज़ेर के साथ। मुस्तक़बिल आइंदा ज़माना यानी आने वाला ज़माना, फ्यूचर, ठीक है? ज़माना वक़्त को कहते हैं और ज़माने 3 हैं। माज़ी गुज़रा हुआ ज़माना यानी पास्ट, हाल मौजूदा ज़माना यानी प्रेज़ेंट, मुस्तक़बिल आइंदा ज़माना यानी आने वाला ज़माना, ठीक है? यानी फ्यूचर, ठीक है? इसी को एक शायर ने बहुत मुख्तसर अंदाज से, अच्छे अंदाज से एक शेर में पिरो दिया है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। वक़्त जो मौजूद है वो हाल है। एक मिसरा हो गया ना शेर का? वक़्त जो मौजूद है वो हाल है, गुज़रा माज़ी, आता इस्तक़बाल है। वज़न बैठाल दिया और उन्होंने शेर शेर बना दिया। शेर बनाने का मकसद क्या होता है? शेर के ज़रिए से चीज़ें, बात जो होती है वो ज़हन में क्या कहता है, मज़बूती से बैठ जाता है, ठीक है? इसीलिए शेर वग़ैरह का इस्तेमाल किया करते हैं लोग। वक़्त जो मौजूद है वो हाल है यानी प्रेज़ेंट, गुज़रा माज़ी, गुज़रा जो गुज़र चुका वो माज़ी यानी पास्ट, और आता इस्तक़बाल है, इस्तक़बाल मुस्तक़बिल से इस्तक़बाल, ठीक है? फ्यूचर। उसके बाद है फ़ेल, काम को कहते हैं। फ़ेल यानी वर्ब, वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब काम को ही कहते हैं। फ़ेल काम को कहते हैं, ठीक है? नहीं कहते, आम बोलचाल में भी बोलते हैं उसका फ़ेल बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है? उसके अफ़आल अच्छे नहीं है, इस तरह से बाज़ दफ़ा बोला जाता है, ठीक है? और फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं। फ़ेल काम को कहते हैं और फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं, ठीक है? एकदम आसान है, ठीक है? अब देखिए फ़ेल माज़ी जो है, फ़ेल माज़ी, फ़ेल के माना वर्ब, फ़ेल के माना काम यानी वर्ब, और माज़ी मज़ा यमज़ी यानी जो ज़माना गुज़र चुका। फ़ेल माज़ी यानी पास्ट टेंस, फ़ेल माज़ी यानी पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। फ़ेल माज़ी यानी सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है? फ़ेल माज़ी यानी सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा फ़ेल है? वो डेफ़िनेशन देखिए। फ़ेल माज़ी वो फ़ेल है जो गुज़रा हुआ ज़माना बताए, ठीक है? फ़ेल माज़ी वो फ़ेल है जो गुज़रा हुआ ज़माना बताए। जैसे एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, ज़रबा, ज़रबा का तर्जुमा होगा मारा उसने। ये जो ज़रबा है फ़अला के वज़न पे है, ठीक है? फ़अला के वज़न पे, यानी फ़अला में 3 लेटर हैं, फ़ा ज़बर फ़ा, ऐन ज़बर आ, लाम ज़बर ला। तीनों पे ज़बर है, ठीक है? अभी फ़िलहाल तीनों पे ज़बर वाली मिसाल समझा रहा हूँ। ये एक स्पेसिफ़िक पैटर्न है, फ़अला, ठीक है? इस वज़न पे जो भी आएगा, जो भी वर्ब आएगा वो सिंपल पास्ट टेंस होगा, फ़अला के वज़न पे। अब देख लीजिए ज़रबा के वज़न, ज़रबा जो है, ये जो ज़रबा जिसका माना है मारा उसने, ये फ़अला के वज़न पे है कि नहीं है? जिस तरह से फ़अला के तीनों लेटर यानी फ़ा पे और ऐन पे और लाम पे ज़बर है, फ़तहा है, वैसे ही ज़रबा के ज़ाद पे, रा पे और बा पे फ़तहा है। तो ज़रबा फ़अला के वज़न पे है, ठीक है? जैसे ज़रबा मारा उसने
मारा उसने यानी गुज़श्ता ज़माना में, ठीक है, यानी ये समझाने के लिए बोला है। मारा उसने, इसका तर्जमा होगा गुज़श्ता ज़माना में, मारा उसने यानी गुज़श्ता ज़माना में। फ़ेल माज़ी यानी सिंपल पास्ट टेंस वो फ़ेल है, वो टेंस है, वो फ़ेल है जो गुज़रा हुआ ज़माना बताए, गुज़रे हुए ज़माने को, यानी गुज़रे हुए कल को जो बताए, ठीक है, गुज़रा हुआ जो ज़माना बताए उसे फ़ेल माज़ी कहेंगे, सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे, ठीक है, सिंपल में अगर बताए तो। जैसे ज़रबा, ज़रबा का तर्जमा है मारा उसने, ठीक है, यानी गुज़श्ता ज़माना में। तो ये जो ज़रबा है ये फ़ेल माज़ी है। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि मारा उसने, मारा उर्दू में गौर कीजिए, मारा, ये नहीं कह रहा मारेगा, ये नहीं कह रहा मार रहा है, मारा यानी मार चुका, तो ये फ़ेल माज़ी हुआ, ठीक है। उसके बाद फ़ेल मुज़ारे। मुज़ारे टर्म को आप लोग समझ चुके हैं, यानी एक ऐसा टर्म, अरबिक में, अरबिक ग्रामर के हिसाब से एक ऐसा टर्म जिसके अंदर फ़ेल हाल और फ़ेल इस्तिक़बाल यानी प्रेज़ेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों पाया जाए, दोनों का सेंस पाया जाए, एट ए टाइम दोनों पाया जाए। वो और बात है कि हम इस्तेमाल करते वक़्त कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, सियाक़-ओ-सबाक़ के हिसाब से, जैसा यूज़ होगा यूज़ के हिसाब से हम सिंगल-सिंगली इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? बैक वक़्त दोनों को एट ए टाइम दोनों को इस्तेमाल नहीं, दोनों ज़माना का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन ये जो टर्म है मुज़ारे, ये दोनों का सेंस देता है, यानी प्रेज़ेंट टेंस का भी सेंस देता है और फ्यूचर टेंस का भी देता है। ऐसे टर्म को जो फ़िलहाल ज़माना, मौजूदा ज़माना को भी बताए और आने वाले ज़माने को भी बताए, ऐसे टर्म को मुज़ारे कहते हैं, ठीक है? और फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल है, फ़ेल के माना वर्ब होगा, फ़ेल मुज़ारे यानी मुज़ारे वाला वर्ब, वो फ़ेल है जो मौजूदा, मौजूदा यानी जो अभी ज़माना चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये किस ज़माने में? अभी, अभी, ठीक है, ये मौजूदा ज़माने में या फिर आइंदा ज़माने में। कल मैं तीसरा सबक पढ़ाऊँगा, वो कौन-सा ज़माना होगा? आने वाला ज़माना होगा, ठीक है? तो मौजूदा ज़माना और आइंदा ज़माना, दोनों ज़माना पाया जा रहा है इस मुज़ारे में। फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल है, जो मौजूदा या आइंदा ज़माना बताए, ठीक है? ऐसा फ़ेल जो प्रेज़ेंट टेंस को भी बताए और फ्यूचर टेंस को भी बताए, ऐसे टर्म को मुज़ारे कहते हैं। जैसे यज़रिबु, ठीक है? ये यफ़अलु के वज़न पे होगा या फिर यफ़इलु के वज़न पे होगा। देखिए, अभी तो मैंने बताया फ़अला के वज़न पे ज़रबा, ठीक है? लेकिन यज़रिबु अब आया, तो ये जो यज़रिबु है, ये अगर हम बोलेंगे यफ़अलु के वज़न पे, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे ज़ेर कैसे आ गया? तो फिर बाब की बात आ जाएगी। एक टर्म होता है बाब, जो आप शायद इस किताब के आखिर में पढ़ेंगे, ठीक है? इसलिए अभी रहने दें, बीच में ज़ेर भी आएगा। यज़रिबु के माना समझें। यज़रिबु का तर्जमा होगा मारता है या मारेगा। एकदम क्लियर करके तर्जमा कर रहे हैं किया है इन्होंने। फ़िलहाल, फ़िलहाल यानी अभी, अभी। फ़िलहाल मारता है। फ़िलहाल यानी अभी, जस्ट अभी। फ़िलहाल मारता है वो या आइंदा मारेगा वो। किसी एक यज़रिबु के अंदर दोनों सेंस है। ये भी है कि फ़िलहाल मारता है वो, ये भी इसी से तर्जमा हो रहा है और आइंदा मारेगा वो, ये भी यज़रिबु से तर्जमा हो रहा है। यानी यज़रिबु 2 तर्जमा दे रहा है। एक तर्जमा है फ़िलहाल मारता है वो, दूसरा तर्जमा है आइंदा मारेगा वो। तो मारता है, ये मौजूदा ज़माना में यानी प्रेज़ेंट टेंस है और मारेगा, गा जिसमें लगता है वो क्या होता है? फ्यूचर होता है, ठीक है? फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल है जो मौजूदा यानी प्रेज़ेंट या आइंदा यानी फ्यूचर दोनों ज़माना को बताए। जैसे यज़रिबु, यज़रिबु के माना होगा फ़िलहाल मारता है वो या आइंदा मारेगा वो, ठीक है? उसके बाद है फ़ेल अम्र। कोई अगर सवाल रहेगा तो पूछ लीजिएगा, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? मैं रुक कर बता दूँगा। फ़ेल अम्र, फ़ेल यानी वर्ब। अम्र के माना होते हैं किसी काम का, किसी बात का हुक्म देना, यानी इंग्लिश में उसे स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है? ऑर्डर,
ऑर्डर करना, स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऑर्डर की दो किस्में होती हैं, एक तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, एक निगेटिव होता है, ठीक है। और इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा चुका हूँ दावत के टर्म में, कि दावत का एक टर्म है, दावत तबलीग का क्या है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। अमर यानी हुक्म करना, और बिल मारूफ यानी नेकी का, भलाई का हुक्म करना, ठीक है। और नहीं अनिल मुनकर, नहीं के माने रोकना, और अनिल मुनकर, मुनकर के माने बुराई, बुराई से रोकना। ये दावती जिम्मेदारी है हम तमाम उम्मत पर, ठीक है, आखिरी नबी की उम्मत होने की हैसियत से, ठीक है। तो फेल अम्र, अम्र से क्या होता है, हुक्म दिया जाता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट को कहते हैं फेल अम्र, ठीक है, जिसके जरिए से कोई किसी काम का के करने का हुक्म दिया जाए, पॉजिटिवली किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए पॉजिटिवली, ठीक है, तो उसे फेल अम्र कहेंगे। फेल अम्र वो फेल है जिसके जरिया किसी काम का हुक्म दिया जाए, बहुत आसान हो गया। फेल अम्र वो फेल है जिसके जरिए किसी काम का हुक्म दिया जाए, जैसे कोई बड़ा अपने से छोटे से कहता है ए पानी लाओ, ठीक है, तो ये अम्र में आता है, ये अम्र में आता है, ठीक है, यानी ऑर्डर में आता है। लेकिन अगर छोटा बच्चा अगर बड़े से कुछ कहना चाहता है तो वो कभी भी अम्र में नहीं आएगा, वो रिक्वेस्ट में आएगा या किसी और चीज में आएगा, वो अम्र में नहीं आएगा। छोटा बड़े को अम्र नहीं कर सकता है इस मामले में, ठीक है। तो अम्र हो गया। फेल अम्र वो फेल है जिसके जरिए किसी काम का हुक्म दिया जाए, हुक्म बड़ा अपने छोटे को देता है, ठीक है। और सबसे बड़ा हाकिम अहकमुल हाकिमीन अल्लाह जल्ला शानुहु है, ठीक है। जैसे इजरिब, इसकी जो मिसाल है, किताब की मिसाल, जैसे इजरिब, इजरिब ये जो है फेल अम्र है, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसका तर्जमा होगा मार तू, ठीक है, तू मार। किसी को मारने के लिए, कोई किसी को मारने के लिए बोल रहा है, कोई बड़ा, ठीक है, अपने से छोटे को बोल रहा है कि तू फला को मार, इजरिब मार तू। तो ये इजरिब जो है, इस इजरिब के जरिए से मारने का हुक्म दिया जा रहा है, तो ये फेल अम्र कहलाएगा। फेल है यानी वर्ब है, इजरिब वर्ब है, ठीक है। इसके वर्ब कहते हैं काम को। मार तू, मारना क्या है, काम में, यानी वर्ब है, ठीक है। और हुक्म दिया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है, तो ये अम्र है, पहले अम्र। पहले अम्र वो फेल है जिसके जरिए किसी काम का हुक्म दिया जाए, जैसे इजरिब मार तू। अब इसी का जस्ट उल्टा है निगेटिव स्टेटमेंट, यानी फेले नहीं, ठीक है, फेले नहीं। फेले नहीं क्या है, वो फेल है जिसके जरिए किसी काम से रोका जाए, जस्ट उसका उल्टा है। फेले नहीं वो फेल है जिसके जरिए किसी काम से रोका जाए, मना किया जाए, जैसे ला तजरिब, ठीक है। ला तजरिब का तर्जमा होगा मत मार तू, क्यों मार रहा है तू, मत मार तू, ला तजरिब, ला तजरिब मत मार तू, ठीक है। ये निगेटिव स्टेटमेंट है, यानी निगेटिव में ऑर्डर है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि मत मारो, ऐसा मत करो, ठीक है। उसके बाद है फेले मारूफ। फेले मारूफ समझ चुके हैं आप लोग, और इसी का उल्टा है फेले मजहूल। फेले मारूफ वो फेल है जिसका फाइल यानी करने वाला मालूम हो। फेले मारूफ वो फेल है जिसका फाइल यानी काम करने वाले को फाइल कहते हैं, ठीक है। कोई भी काम होता है तो काम करने वाला भी पाया जाता है। फेल मारूफ वो फेल है जिसका फाइल यानी करने वाला मालूम हो, ठीक है, चाहे लिखा हुआ हो, चाहे चाहे लिखा गया हो, चाहे समझा गया हो, ठीक है। दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होना चाहिए, लिखा गया हो फाइल तब भी, और अंडरस्टूड हो फाइल, नहीं लिखा हुआ है लफ्जों में लेकिन समझा जा रहा है कि हाँ यहाँ जो जमीर छुपी हुई है वो फाइल है। दोनों कंडीशन में फाइल क्या कहलाएगा, मारूफ कहलाएगा, ठीक है। पहले मारूफ वो फेल है जिसका फाइल यानी करने वाला, ब्रैकेट में बता दिया, करने वाला मालूम हो। जैसे जराबा जैदुन, ये एक जुमला है, जराबा जो है फेल माजी है, और इसका फाइल जो है जैदुन है, जैद ने मारा, तर्जमा है जैद ने मारा। तो जैद क्या है, मारने वाला कौन है, मारने वाला जैद है। कोई भी काम करने वाले को क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं टर्म में। फेल मारूफ वो फेल है जिसका फाइल मालूम हो, मालूम हो। जराबा जैद उनमें जैद तो मालूम है, लफ्जों में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है,
ठीक है। इस वजह से जैद लफ्जों में लिखा हुआ है एकदम क्लियर, तो जैद जो फाइल है जब क्लियर लिखा हुआ है दिख रहा है, ठीक है, इस कंडीशन में जैद क्या होगा, फाइल होगा। और इसी की वजह से इसी जैद जो लिखा हुआ है एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, इसकी जराबा जो है फेले मारूफ होगा। क्यों? क्योंकि इस जराबा का जो फाइल है वो मालूम है, लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर इधर से हम थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं, इसको थोड़ा ज्यादा डार्क कर देते हैं, मान लीजिए इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, जायद को हटा दिया, तो अब क्या बच गया, जराबा। भी फेले मारूफ है जराबा। क्यों? क्योंकि जराबा के अंदर हम जानते हैं कि हुआ जमीर पोशीदा, यानी हुआ जमीर छुपी हुई है, हिडन जमीर है, ठीक है। हुआ जो ही के बदले आता है, और जराबत के अंदर हिया जो शी के बदले आता है, लेकिन यहाँ पे मुजक्कर है। जराबा के अंदर हुआ जमीर पोशीदा है, यानी हिडन जमीर है, ठीक है। इस वजह से ये जमीर हम कैसे समझे, ये अंडरस्टूड है, यानी समझा हुआ है कि इसके अंदर जमीर है। तो दो कंडीशन में, यानी फेल का फाइल समझा गया या लिखा गया हो, इन दोनों कंडीशन में फेल जो होगा वो मार्क आएगा। इसी को इंग्लिश में शायद एक्टिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। और पैसिव वॉइस कहते हैं फेल मजहूल को। फेल मजहूल वो फेल है जिसका फाइल मालूम ना हो, नहीं कोई काम तो हुआ हो, लोगों को काम तो पता चला हो, ठीक है, लेकिन काम करने वाला जो है फाइल ना तो अंडरस्टूड हो, ना तो लिखा गया हो, ना तो बोला गया हो, ना तो समझा गया हो, कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। जबरदस्ती हम निकाल नहीं सकते। फेले मजहूल की कंडीशन में क्या होगा, फेले मजहूल वो फेल है जिसका फाइल यानी करने वाला मालूम ना हो, कोई अता पता नहीं, ना तो लफ्जों में, ना तो लिखा गया हो, ना तो बोला गया हो, ना तो समझा गया हो। जैसे जुरीबा, जुरीबा जो है फेले मजहूल है, ठीक है। जुरीबा का तर्जमा होता है मारा गया, ठीक है। जुरीबा जईदुन, जैद मारा गया। याद रखें जैद फाइल नहीं है, काम करने वाला नहीं है, ये दर हकीकत ऑब्जेक्ट है। क्योंकि काम, ये जो किसने मारा ये तो बिल्कुल पता ही नहीं, कोई अता पता नहीं, ठीक है। लेकिन जो मारने का जो असर हुआ है, जो असर पड़ा है, वो जैद के ऊपर पड़ा है। तो जिसके ऊपर असर पड़ता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है। तो फेले मजहूल का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नायब फाइल कहलाता है, ठीक है। तो फेले मजहूल वो फेल है जिसका फाइल मालूम ना हो। जैसे जुरीबा जैदुन का तर्जमा हो रहा है जैद मारा गया, जैद मारा गया, ये नहीं कह रहे कि जैद ने मारा, जैद को मारा गया ये भी कह सकते हैं, लेकिन जैद मारा गया या जैद को मारा गया, जैद की पिटाई हुई, इसमें पीटने वाला कहाँ पता चल रहा है। तो फेल मजहूल की कंडीशन में फाइल न तो लिखा जाता है, न तो समझा जाता है, न तो बोला जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं फेल मजहूल, ठीक है। उसके बाद है फेल मुस्बत। फेल मुस्बत, मुस्बत के माना होते हैं पॉजिटिव, फेल के माना होते हैं वर्ब, पॉजिटिव वर्ब। और इसी का उल्टा है मनफी यानी निगेटिव, निगेटिव वर्ब। फेल मुस्बत यानी पॉजिटिव वर्ब वो फेल है जो काम के होने को बताए, किसी भी काम के होने को बताए, किसी भी काम का होना या करना, आम आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ, किसी भी काम का होना या करना अगर पता चले तो उसके अंदर जो वर्ब यानी फेल पाया जाएगा, ठीक है, होना या करना की कंडीशन में, होना या करना की कंडीशन में। जाहिर सी बात होगा तो कोई करेगा, ठीक है, कोई भी काम। फेले मुस्बत वो फेल है जो काम के होने को बताए, जिससे कोई काम का होना या करना पता चले, ठीक है। तो उसके अंदर जो फेल होगा, जो वर्ब होगा, उस वर्ब को पॉजिटिव वर्ब कहेंगे, मुस्बत यानी पॉजिटिव, पहले मुस्बत यानी पॉजिटिव वर्ब, ठीक है। जैसे जराबा, जराबा का तर्जमा होगा उसने मारा, मारा उसने, जराबा के माना होंगे मारा उसने। तो देखिए इसने मारा है, उसने मारा, मारा उसने, ठीक है। तो मारने का काम जो है पॉजिटिवली पता चल रहा है, मुस्बत, ठीक है, कि हाँ मारा है, मारने का वजूद हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं मारा, ठीक है। इसी का उल्टा है फेले मनफी। फेले मनफी वो फेल है जो काम के ना होने को बताए, जस्ट उल्टा,
पहले मुस्बत का, पॉजिटिव वर्ब का जस्ट उल्टा नेगेटिव वर्ब। पहले मनफी वो पहले जो काम के ना होने को बताए, जैसे मा ज़राबा, शुरू में मा लग जाएगा बस, मा ज़राबा, नहीं मारा उसने। जिस सेंटेंस में किसी काम के ना होने या ना करने के बारे में पता चले, तो उस सेंटेंस, उस नेगेटिव सेंटेंस में जो वर्ब होगा उसको हम नेगेटिव वर्ब कहेंगे, यानी फेले मनफी कहेंगे। ये हो गया दूसरा लेसन क्लियर। कोई सवाल हो तो पूछिए, वरना मैं ऊपर से एक सरसरी तौर पे रिपीट कर देता हूँ। जहन में कोई सवाल है तो तैयार रखिए, बोल बता दीजिएगा। चलिए, दूसरा सबक, जमाना वक्त को कहते हैं और जमाने तीन हैं, ठीक है। माजी, गुजरा हुआ जमाना, गुजरे हुए जमाना को माजी कहते हैं, यानी पास्ट। हाल, मौजूदा जमाना, यानी जो मौजूदा, जो जमाना अभी चल रहा है, ठीक है, इसे हाल कहेंगे, प्रेजेंट टेंस। और मुस्तकबिल या मुस्तकबल, बा के ज़बर के साथ या बा के ज़ेर के साथ, ज़्यादा फेमस जो है वो मुस्तकबिल है, बा के ज़ेर के साथ, ठीक है। मुस्तकबिल लफ्ज़ ज़्यादा मशहूर है। मुस्तकबिल के माना आइंदा ज़माना, आइंदा यानी आने वाला, ठीक है, यानी फ्यूचर टेंस। उसके बाद फेल, काम को कहते हैं। फेल यानी वर्ब, वर्ब किस चीज को कहते हैं, काम को ही तो कहते हैं, ठीक है। आई गो, मैं जाता हूँ, या फिर मैं खाता हूँ, तो जाना और आना ये क्या है, काम ही तो है। फेल काम को कहते हैं। और फाइल काम करने वाले को कहते हैं। कोई भी काम जो होगा तो उसका जो करने वाला होगा, ठीक है, उसे हम फाइल कहेंगे, फाइल काम करने वाले को कहते हैं। उसके बाद है फेले माजी, फेले माजी यानी पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। फेले माजी वो फेल है जो गुजरा हुआ जमाना बताए, जो जमाना, जो गुजरा हुआ जमाना बताए, जो वर्ब, उसे फेले माजी कहेंगे। जैसे जराबा, मारा उसने, जराबा का माना होगा मारा उसने। तो तर्जमा पे गौर कीजिए, उर्दू में भी मारा यानी मार चुका, तो ये किस जमाने में है, पास्ट में, तो उसे फेले माजी कहेंगे, यानी गुजश्ता जमाना में, गुजश्ता यानी गुजरे हुए जमाना में। फेले मुजारे एक ऐसा टर्म है जिसमें फेले हाल और फेले मुस्तकबिल दोनों पाया जाता है, ठीक है। फेले मुजारे वो फेल है जो मौजूदा ज़माना, यानी जो ज़माना अभी चल रहा है, इसमें मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ठीक है, ये मौजूदा ज़माना हुआ। या फिर आइंदा ज़माना, ठीक है, वो बताए, वर्ब को फेले मुजारे कहेंगे, ठीक है, उस फेल को फेले मुजारे कहेंगे। जैसे यज़रिबु, वो मारता है, फिलहाल वो फिलहाल मारता है वो, या आइंदा मारेगा वो, इसी की जगह अगर रहता है यक़रउ, फिलहाल पढ़ता है वो या आइंदा पढ़ेगा वो, ठीक है। यस्माउ, फिलहाल सुनता है वो या आइंदा सुनेगा वो, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद फेले अम्र, यानी स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट जिसके जरिए से ऑर्डर किया जाता है, ठीक है। फेल अम्र वो फेल है जिसके जरिया किसी काम का हुक्म दिया जाए, ऑर्डर किया जाए, हुक्म यानी ऑर्डर दिया जाए। जैसे इजरिब, इजरिब का तर्जमा है मार तू, यानी तुझे मारने के लिए बोला जा रहा है, इजरिब मार तू, ठीक है। तो ये जो इजरिब है ये फेल अम्र है, ये वर्ब है और ये अम्र है, अम्र यानी स्टेटमेंट है, ऑर्डर दिया जा रहा है इसके जरिए। उसके बाद फेले नहीं, अम्र का उल्टा है, यानी निगेटिव स्टेटमेंट को फेले नहीं कहते हैं। फेले नहीं वो फेल है जिसके जरिए किसी काम से रोका जाए, ए ऐसा ना करो, वैसा ना करो, खड़े होकर पानी ना पियो, तो किसी को गाली ना दो, किसी के साथ बुरा ना करो, ये सब क्या है, फेले नहीं में आता है। फेले नहीं वो फेल है जिसके जरिए किसी काम से रोका जाए। जैसे ला तजरिब, मत मार तू, ला तजरिब मत मार तू, ये ला तजरिब जो है ला के साथ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा फेले नहीं। उसके बाद फेले मारूफ, फेले मारूफ एक होता है, एक होता है फेले मजहूल। जिस कंडीशन में फाइल यानी काम करने वाला चाहे लफ्जों में लिखा गया हो, चाहे समझा गया हो, ठीक है, रिटन हो या फिर अंडरस्टूड हो, उन दोनों कंडीशन में फेल जो होगा, फाइल का जो फेल होगा वो होगा मारूफ। फेल मारूफ वो फेल है जिसका फाइल यानी काम करने वाला मालूम हो। मालूम की दो कंडीशन है, या तो लिखा हुआ हो या फिर समझा गया हो, ठीक है। जमीर लिखा हुआ नहीं होता, जराबा के अंदर जमीर छुपी हुई है, ठीक है, वो लिखा हुआ नहीं, हमें समझना है, ठीक है। उसके बाद फेले मजहूल यानी पैसिव वॉइस,
فعل معروف ہو گیا ایکٹیو وائس. فعل مجہول پیسیو وائس. فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو. فعل تو ہوا ہو، فعل کا وجود ہو، لیکن فاعل کا عطا پتہ نہ ہو. جیسے ضریبا، ضریبا کا ترجمہ ہوگا مارا گیا. ٹھیک ہے. زیدن، زیدن آبجیکٹ ہے، اور نائب فاعل کا جو آبجیکٹ ہوتا ہے، فعل مجہول کا جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ نائب فاعل کہلاتا ہے. ضریبا زیدن، زید مارا گیا. یہ زید فاعل نہیں ہے، مارنے والا نہیں ہے، بلکہ مار کھانے والا ہے. ٹھیک ہے. اور نائب فاعل کی کنڈیشن میں جو آبجیکٹ ہوتا ہے نہیں، فعل مجہول کی کنڈیشن میں جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہی نائب فاعل کہلاتا ہے. اس کے بعد فعل مثبت. مثبت کے معنی پازیٹیو، فعل کے معنی ورب، پازیٹیو ورب. اور فعل منفی نگیٹو ورب. فعل مثبت وہ فعل ہے جو کام کے ہونے کو بتائے. جس سینٹینس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پتہ چلے، اس سینٹینس کے اندر جو ورب ہوگا، اس ورب یا فعل کو، ورب اور فعل ایک ہی چیز کا دو نام ہے، انگلش اور اردو، اس ورب یا فعل کو کیا کہیں گے؟ فعل مثبت کہیں گے، پازیٹیو ورب کہیں گے. ٹھیک ہے. جیسے ضربا، مارا اس نے، مار کا وجود ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کو نکارا نہیں جا سکتا. کسی نے مارا ہے تو مارا ہے، کسی کو پیٹ دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فعل منفی وہ فعل ہے جو کام کے نہ ہونے کو بتائے. جس سینٹینس کے ذریعے سے کسی کام کا نہ ہونا یا پھر نہ کرنا پتہ چلے، تو اس سینٹینس کے اندر جو نگیٹو ورب ہوگا، اس ورب کا نام ہوگا فعل منفی. فعل یعنی ورب، منفی یعنی نگیٹو. جی الحمدللہ آج کا پہلا کلاس ہو گیا. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. اور اگر ابھی فوری طور پر اگر سوال ذہن میں نہیں آتا ہے تو آپ لیسن سے ریلیٹڈ جو بھی سوال، یعنی کتاب سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال جو ابھی چل رہا ہے یا جو ہو چکا ہے، اس سے کوئی بھی سوال اگر آپ پوچھیے گا تو انشاءاللہ کوشش ضرور کروں گا کہ تمام سوال کو حل کروں. ٹھیک ہے. اس لیے ریویژن بھی کیجیے گا، تو کوئی سوال اگر آتا ہے تو اس کو لکھ لیجئے یا پھر ذہن میں رکھیے. کسی بھی صورت میں پوچھیے گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا اسے حل کرنے کا. ٹھیک ہے. کوئی سوال اگر ہے کوئی ساتھی کو تو پوچھ لیجئے. جس دن آسان ہوگا اس دن 2 لیسن ہوگا، اور جس دن زیادہ مشکل لیسن رہے گا اس دن 1 ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی بیسک چیز ہے، ایسی چیز ہے جو آپ اردو میں بھی پڑھے ہوں گے اور اردو میں بھی رہتا ہے. جی 1 منٹ بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ نے جو فعل مضارع بتایا اس میں یضربو ہوں. پریزنٹ ٹینس فیوچر ٹینس دونوں ایک ہی اس میں آئے گا؟ کیا دونوں ایک ہی میں؟ مطلب یہ یضربو ہے تو اس میں پریزنٹ ٹینس فیوچر ٹینس دونوں ہاں آپ نے ہاں دونوں وہی ایک تو ہی میں کہا آئے گا. ہاں دونوں ایک ہی میں آئے گا، لیکن جب ہم یوز کریں گے جو جی سینٹینس میں، اس وقت ہمیں جی کلیئر کرنا ہوگا کانٹیکس کے حساب سے. سیاق و سباق اردو میں بولتے ہیں کانٹیکس کو. سیاق و سباق کے حساب سے کہ یہاں پہ ہمیں فیوچر میں ایز اے فیوچر استعمال کرنا ہے یا پھر ایز اے پریزنٹ استعمال کرنا ہے. لیکن جی جی یضربو جو ٹرم ہے اس کے اندر دونوں سینس ہے، پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے. جی ٹھیک ہے. اس وزن پہ جو بھی ہے، جیسے یفعلو ہے، یضربو ہے، یسمعو ہے، جی ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو بتلاتے ہیں. جی 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 شکریہ. جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ. اور کچھ سوال ہے تو پوچھ لیجئے ورنہ اینڈ کر دیتے ہیں کلاس. چلیے بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.